کو بتاتے چلیں شہر اولیہ میں ہرسو بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کا ڈنکا۔ بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کا پہلا میچ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وقاص خاکمانی سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ پاکستانی کھلاڑی مدینہ ظفر نے سریا کی جلینا وطینہ کو شکست دے دی۔ کولمبین پلیئر کیٹلینا پولز نے پاکستانی کھلاڑی زینب خان کو شکست دے دی۔ میل کیٹیگری کے دوسرے میچ میں پاکستان کے اسکواش پلیئر طیب اسلم نے جیت اپنے نام کر لی۔ اسی سے متعلق آپ کو بتائیں گے شہر اولیہ میں ہر طرف بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کا ڈنکا۔ لیگ میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے آنے والے وفود کی میزبانی کے انتظامات عروج پر ہیں۔ مہمانوں کو ملتان کی ثقافت، قدامت اور تاریخی ورثے سے متعارف کرانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ قلعہ کوہنہ قاسم باغ پر واقع تاریخی دھمک بھی دھمک اٹھا۔ شہر اولیہ میں بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ کی دھوم مچ گئی۔ لیگ میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے آنے والے وفود کو ملتان کی ثقافت، قدامت اور تاریخی ورثے سے متعارف کرانے کے لیے دمدمے پر بھرپور انتظامات جیمز آویزاں کر دیے گئے۔ خوبصورتی ہے، یہاں ہریالی دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے یہاں باغیچے بنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے۔ اور جلد سے جلد یہ جتنی جلدی ہو سکے، یہ بتا رہے تھے کہ بھائی کہ جو ہے نا 20 تاریخ تک یہاں پر کام ہونا ہے۔ شیشے سے تیار کردہ نئے باکس میں قرآنی آیات، تحریر کردہ گلدان اور بلو پوٹری کے شاہکار سجا دیے گئے۔ دمدمے کی بیرونی دیواروں کی بھی تعزین و آرائش کر دی گئی۔ بڑا دمدمہ کے بارے میں سنا تھا، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، لیکن مینٹیننس کا ابھی آئے تھے گھومنے پھرنے، وہ بول رہے ہیں مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے، تو بڑا دل سے یعنی کہ دکھ ہو رہا ہے کہ یہاں آئے اتنے دور سے گھومنے تو یہ نہیں دیکھ پائیں گے، دکھ ہوگا، بس جلد سے جلد اس کا کام کروایا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسکواش لیگ کے ذریعے ملتان کی سیاحت اور ثقافت کو فروغ ملنا خوش آئند ہے۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ سربراہ یونیسیف پاکستان ڈاکٹر ہمیش چوہان کچے کے علاقے پہنچ گئے۔ WHO پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر زین العابدین پولیو کے سامنے آنے پر رحیمیہ خان میں مصروف رہے۔ صادق آباد میں دریائی علاقہ بھونگ میں سزاد پولیو مہم کا جائزہ بھی لیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ مسجد بھونگ کا دورہ بھی کیا گیا۔ پولیو کے سامنے آنے پر WHO پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر زین العابدین اور یونیسیف پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر ہمیش چوہان رحیمیہ خان کے دورے پر ہیں۔ ملتان میں پرہلاد مندر کی بحالی کو ہندو برادری نے خوش آئند قرار دے دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد ہندو کمیونٹی نے پرہلاد مندر میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کی۔ رپورٹ کریں گے وسیم شہزاد۔ یہ مناظر ہیں پرہلاد مندر کے، جہاں ہندو برادری، کثیر تعداد علماء کرام، سول سوسائٹی اور انتظامیہ سے اجازت ملنے کے بعد اپنی مذہبی عبادات میں مصروف ہو گئی۔ ہندو برادری کا کہنا ہے کہ پرہلاد مندر کی بحالی پر پاکستانی حکومت کے بے حد مشکور ہیں۔ ہولی کا تہوار ہے، وہ پیار محبت کا تہوار ہے، بھائی چارے کا تہوار ہے، اور ایک ہم پاکستان میں یہ ایک پوری دنیا کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ جو ایک پیار کا، ایک محبت کا جو پیغام ہولی کی طرف سے جائے گا مندر کی بحالی کی وجہ سے، تو ایک اچھا پیغام جائے گا۔ ہندو کمیونٹی کا کہنا ہے کہ ملتان میں پرہلاد مندر کی بحالی دنیا کو امن کا پیغام دے رہا ہے۔ پاکستان میں منارٹیز کو برابر کے حقوق مل رہے ہیں۔ ہمسایہ ملک سے درخواست ہے کہ بھارت میں موجود منارٹیز کو بھی برابر کے حقوق دے۔ ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، اس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح سے یہ ہمارے اس مندر کو، جو پرہلاد مندر ہے ہمارا، بہت ہماری یہاں پہ تیرتھ ہے یہاں پر، تو اس کو بحال کیا گیا ہے۔ میری ان سے اپیل ہے کہ جس طرح سے یہ بحال ہوا ہے اسی طرح سے وہاں کی جو حکومت ہے وہ بھی بابری مسجد کو بحال کرے، تاکہ وہاں کے جو ہمارے مسلم بھائی ہیں اور وہاں کی جو منورٹی ہے اس کو بھی اسی طرح سے خوشی حاصل ہو۔ ہندو برادری کا کہنا ہے کہ پرہلاد مندر ان کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 5000 سال پہلے ہولی کا تہوار بھی اسی مندر سے شروع ہوا تھا۔ اس بار وہ ہولی نہایت دھوم دھام سے منائیں گے۔ پرہلاد مندر کی بحالی پر ملتان میں موجود ہندو کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور وطن عزیز پاکستان میں ہندو کمیونٹی آزادانہ طور پر اپنی مذہبی عبادات ادا کر رہی ہے۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔
बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा न्यूरो सर्जरी में कायम होने वाले जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह कर दिया गया। जनूबी पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से मज़यन अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन थिएटर है। अतहल अशारी की रिपोर्ट। पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल बहावल विक्टोरिया के शोबा न्यूरो सर्जरी में जदीद ऑपरेशन थिएटर के साथ मरीजों के लिए लिफ्ट का भी इफ्तिताह कर दिया गया। प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम और MS डॉक्टर असलम मलिक का कहना है कि जदीद ऑपरेशन थिएटर से इलाज की सहूलियात में बेहतरी आएगी। अरशद साहब की बड़ी मेहनत है, कोशिश है, और ये एक यहाँ के लोगों के लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। नया ऑपरेशन थिएटर जिसको मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कहते हैं, मॉडल के तौर पे इसको समझ देंगे, ये मॉडल है, तो उसमें नए इक्विपमेंट के साथ वो उसकी इंस्टॉलमेंट हुई है। सरबराह न्यूरो सर्जरी वार्ड प्रोफेसर डॉक्टर अरशद चौधरी का कहना था कि ये जनूबी पंजाब का जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर है जिसमें सिटी स्कैन की सहूलत भी मौजूद है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने इंतजामिया की काविशों को सराहा। ये जो हमारा ये प्रोजेक्ट था दैट वाज अपग्रेडेशन ऑफ न्यूरो सर्जरी, उसी के सिलसिले में आज हमने यहाँ पे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का इफ्तिताह किया है और एक नई बेड लिफ्ट का इफ्तिताह किया। कोशिश कर रहे हैं मरीजों को फैसिलिटेट करने की, और जैसे कि अभी अरशद साहब ने बताया कि ये एक जनूबी पंजाब का पहला अस्पताल है जिसमें कि हम लेटेस्ट और जो कि हम इंग्लैंड का मुकाबला कर सकते हैं जिस थिएटर का जैसे इंग्लैंड में अवेलेबल है, यहाँ भी वो फैसिलिटी लोगों को यहीं पे अवेलेबल होगी। बोर्ड इंतजामिया के मुताबिक लाहौर के बाद बहावलपुर पंजाब का वाहिद शहर है जहाँ दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी फराहम की गई है जिससे जनूबी पंजाब के शहरियों को सेहत की सहूलियात बर वक्त मुयसर आ सकेंगी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ और अकरम शाहीन के साथ अतहल आशारी बहावलपुर। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इलाज के गर्ज से आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर यह है कि 2 साल इंतजार के बाद हुकूमत ने शोबा इमरजेंसी को 2 नए डेवलपर अल्ट्रासाउंड फाहम कर दिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा इमरजेंसी के लिए 2 नए डोपलर अल्ट्रासाउंड फराहम कर दिए गए हैं। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी का कहना है कि अब मरीजों को अल्ट्रासाउंड की बेहतर सहूलत दस्तियाब है। मरीजों को बहुत फैसिलिटेशन होगी। ऐसे मरीज जो ट्रॉमा के साथ आ रहे थे, ऐसे मरीज जो CVA के साथ सिक पेशेंट आ रहे थे, तो उनको इमरजेंसी के अंदर ही डॉपलर की सहूलत मैसर होगी। डॉक्टर आमिर बुखारी का कहना था कि इससे कबल एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन थी जिसके बायस मरीजों को इंतजार करना पड़ता था। जदीद मशीनों के आने से मरीजों के अल्ट्रासाउंड मजीद बेहतर और जल्द मुमकिन होंगे। ये फायदा होगा कि जैसे हमारे ट्रॉमा के मरीजों को फास्ट की जरूरत थी तो वो भी अब अवेलेबल होगी, तो उन मरीजों को मेन अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा, उनको इमरजेंसी के अंदर ही उनका डॉपलर अल्ट्रासाउंड हो जाए। डॉक्टर आमिर बुखारी का कहना था कि रोड एक्सीडेंट समेत दीगर केसेस समेत इमरजेंसी में रोजाना 4000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ अतहल आशारी बहावल। मुल्तान पुलिस में भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया। उम्मीदवारों की पुलिस लाइन में 20 से 24 फरवरी तक जिस्मानी फिटनेस की जांच होगी। 25 से 27 फरवरी तक दौड़ होगी। तमाम उम्मीदवारों को असल डॉक्यूमेंट साथ लेकर आने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट करेंगे माहिर इमरान। मुल्तान पुलिस में कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, पेट्रोलिंग पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, ड्राइवर, वायरलेस ऑपरेटर की सीटों पर भर्ती का शेड्यूल जारी किया गया। CPO का कहना है कि 15,599 उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा है। 20 तारीख से ये शुरू होगा, यानी 20 से 24 तारीख तक मेजरमेंट्स होंगी यहाँ पे पुलिस लाइन में, और उसके बाद 25 से 27 तारीख को इंड्योरेंस टेस्ट होगा, जो 1 मील की दौड़ होती है वो होगी। पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए 4,539 नौजवान और 411 खवातीन ने अप्लाई किया। पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस में से 4,221 नौजवानों ने अप्लाई किया। पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस में 453 खवातीन उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट पुलिस में भर्ती के लिए 3,969 नौजवान सामने आए। उम्मीदवारों की पुलिस लाइन में 20 से 24 फरवरी तक जिस्मानी फिटनेस की जांच होगी। उम्मीदवार के कागजात कम थे, उनको हमने इंडिविजुअली कन्वे भी कर दिया है, तो अब जब उम्मीदवार इधर आएंगे तो उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी एंट्री पर, और उसके अलावा वो अपने ओरिजिनल ID कार्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आएंगे। 25 से 27 फरवरी तक उम्मीदवारों की दौड़ होगी। 28 फरवरी को उम्मीदवारों के इतराजात पर फैसला किया जाएगा। CPO मियां महबूब रशीद का कहना है कि भर्ती के अमल को शफाफ बनाने के लिए मुकम्मल इकदाम किए गए हैं। तमाम उम्मीदवार असल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे। कैमरामैन करार हैदर के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। अभी आपको बताते हैं मुल्तान के थिएटर्स को फैमिली थिएटर बनाने के लिए विजिलेंस कमेटी सरगर्म है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमर जमान कैसरानी ने रेक्स थिएटर में जूम आइनी और फहश जुमलों के इस्तेमाल पर मारूफ कॉमेडियन सज्जाद शोकी को 3 दिन के लिए बैन कर दिया है। मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताइएगा मजीद। थिएटर्स को फैमिली थिएटर बनाने के लिए विजिलेंस कमेटी जो है वो सरगर्म है, और आई रोज
जो एक्टर्स है वो बैन होना मुल्तान में शुरू हो गए हैं, क्योंकि ज़ुबानी जुमलों का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। और गुज़िश्ता शब की बात करते चलें तो गुज़िश्ता शब मारूफ कॉमेडियन सजाद शौकी की जानिब से रेक्स थिएटर पर ज़ुबानी जुमलों का जो है वो इस्तेमाल किया गया, जिस पर आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमर जमा कैफरानी ने 3 रोज के लिए जो है वो बैन कर दिया है। अगर इससे पहले की बात करते चले तो एक दिन पहले भी इसी तरीके से नन्ना कुरैशी जो है उनको 2 दिन के लिए बैन किया गया था। हमारे साथ ही मॉनिटर मौजूद होंगे, थिएटर्स की मॉनिटरिंग करते हैं, क्या कहेंगे मुल्तान के थिएटर्स को किस तरह देख रहे हैं और इतनी मॉनिटरिंग के बाद भी ज़ुबानी जुमलों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या कहेंगे? मुल्तान के थिएटर से हटके अगर आप दूसरे शहरों में चले जाएं, खानेवाल है, मेलसी है, डीजी खान है वगैरह वगैरह, बकर है, दरिया खान, सादकाबाद, वहाँ चले जाएं, कतन आपको मुल्तान का माहौल नहीं मिलेगा। वहाँ पे मुजरे भी हो रहे हैं, नोट भी फेंके जा रहे हैं, वहाँ टाइमिंग का कोई ख्याल नहीं। फैमिलीज के बारे में तो आप मामले छोड़ देना, वहाँ ऐसा सीन नहीं है। मुल्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेटर है और इंशाल्लाह इन दिनों में मजीद बेटर हो रहा है। और आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि इंशाल्लाह एक जो प्लान है उस पर इंशाल्लाह पहुँचेगा। ये बिल्कुल प्लान के ऊपर जो है वो सख्ती से मॉनिटरिंग टीम जो है वो अमल कर रही है। और आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कमर जमा कैफरानी की जानिब से मारूफ कॉमेडियन सजाद शौकी को 3 रोज के लिए बैन कर दिया गया है। गुज़िश्ता शब सजाद शौकी की जानिब से रेक्स थिएटर में ज़ुबानी जुमलों का जो है वो इस्तेमाल किया गया था और रेक्स थिएटर में मारूफ। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब से नाराज रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी की मुलाकात हुई। खुर्रम लगारी का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पीटीआई के साथ हुए एमपी खुर्रम लगारी का ऐसा कहना है। वज़ीर आला ने हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला पंजाब जल्द मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। खुर्रम लगारी का ऐसा कहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पार्टी एक है। सीएम पंजाब का ऐसा कहना है। मुंतखब नुमाइंदों को उनके जायज़ हक देंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार का कहना है मुंतखब नुमाइंदों को उनके जायज हक देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पार्टी एक है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐसा कहा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। सेनेट इंतखाबात समेत मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें सेनेट इलेक्शन समेत मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के इस्लामाबाद से सेनेट में हिस्सा लेने के मुतालिक सियासी हिकमत अमली पर गौर व खौज किया गया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि वो जमहूरियत और जमहूरी कुव्वतों के उम्मीदवार हैं। उम्मीद है कि सेनेट इंतखाबात में जमहूरियत पसंद तमाम अरकान कौमी असम्बली उनको वोट देंगे। डेरा गाजी खान में सुखेरा राइयों के मकाम पर दरियाई कटाव तेजी से जारी है। 400 एकड़ का रकबा दरिया भूर्त हो गया, फसलें तबाह हो गईं, काश्तकार परेशान हैं। आशिर अशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान के मोजा सुखेरा आराई में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाई कटाव के बायस कई एकड़ जमीन पानी की जद में आ चुकी है। काश्तकारों की जानिब से कटाव रोकने के लिए इकदाम न किए जाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। काश्तकारों ने कहा कि कई एकड़ जमीन पानी की जद में आ चुकी है, जबकि इंतजामिया का कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा। 5-6 साल से दरिया ने हमें बर्बाद कर दिया सर। हम हर किसी के साथ, सियासी आदमियों के साथ भी बात करते रहे, किसी ने सुनी। मुजाहिरीन का कहना था कि फसलें पानी की जद में आकर तबाह हो गई हैं, मकानात पानी में गिर गए। इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये हमारा 450 मुरब्बे का ये मौजा है, पूरे पंजाब में पहले नंबर पर है, लेकिन अब सारा 3 मुरब्बे बचा हुआ है, बाकी सारा दरिया गर्क। मुजाहिरीन का कहना था कि इंतजामिया ने कोई हिफाजती इकदाम न किए तो आने वाले चंद दिनों में मजीद नुकसान हो सकता है। डेरा गाजी खान के इलाके मोजा सुखेरा आराई में दरियाई कटाव तेजी से जारी है। इलाका मकीन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मनकूला गैर मनकूला जायदाद, बैंक या वरासत की तकसीम का मामला अब अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नादरा से जानशीनी सर्टिफिकेट्स हासिल करें और अपनी जरूरत के मुताबिक सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करें। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए।
इंतकाल कर जाने वाले वारसान को मनकूला या गैर मनकूला जायदाद की तकसीम का मामला हो या बैंक के मामला, वरासत के चक्कर में अदालत के चक्कर घन चक्कर बन जाते हैं। एक माह में मुकम्मल होने वाला काम कई माह पर मुहित हो जाता है। न कोई मसला इस काम की ताखीर का बायस बन जाता है। गवर्नर पंजाब ने 13 दफात पर मुश्तमिल नया जानशीनी कानून जारी कर दिया है। जायदाद का मनकूला और गैर मनकूला हसूल या बैंक के मामला के हल के लिए शहरी के फौत होने पर अदालत नहीं, अब नादरा में दरखास्त देना होगी। नादरा अपने ऑफिस में जानशीनी सर्टिफिकेट का काउंटर बनाएगा। जानशीनी दरखास्त पर 2 अखबारात अंग्रेजी और उर्दू में इश्तिहारात जारी किया जाएगा। 14 रोज में किसी शख्स ने एतराज न किया तो बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद जानशीनी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप है कि ये तमाम डिपार्टमेंट जो है जानशीनी वाला, ये तमाम प्रोसेस जो है नादरा के हवाले कर दिया गया है। आपको जो जानशीनी सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई मनकूला या गैर मनकूला जायदाद के लिए ये बैंक अकाउंट कोई छोड़ जाता है, उसकी रकम लेने के लिए वारसान को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मिर्जा मोहम्मद अमीन और सीनियर एडवोकेट अमर नदीम का कहना है कि नादरा की जानिब से जानशीनी सर्टिफिकेट के हसूल से अवाम को सहूलत मुयसर होगी, मगर नादरा में लंबी लाइनों में खड़े होने से बचाने के लिए भी इंतजाम करना होंगे। श्योरिटी बॉन्ड जो थे वो देने पड़ते थे, वो लोगों की प्रॉपर्टी जो है वो कई माह उस श्योरिटी के चक्कर में पड़ी रहती थी कई साल तक। अगर वो वहाँ पे सहूलतें देते हैं, लोगों को लाइनों से लगने से बचते हैं, फौरी इशू करते हैं, जैसे उन्होंने कहा गया है कि फौरी तौर पे इशू होगा, अगर इसमें इम्प्लीमेंट होने में हो जाता है, इसमें कामयाबी मिलती है तो ये अवाम के लिए बहुत बेहतर होगा। जानशीनी दरखास्तों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाएगा। जहां मतवफी फौत हुआ है या जहां इसकी जायदाद या सरमाया होगा, इस शहर में दरखास्त जानशीनी दायर हो सकेगी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने पर तालिबे इल्म और असातिज़ा का एहतजाज। तलबा ने 6 नंबर रोड ब्लॉक कर दी। कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना नामंजूर के नारे लगाए और तलबा एहतजाज भी करते रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने पर कॉलेज के तालिबे इल्म और असातिज़ा ने एहतजाज करके 6 नंबर रोड ब्लॉक कर दिया। तमाम असातिज़ा और तालिबे इल्म कॉलेज खत्म करने को तालीम दुश्मनी कहते रहे। असातिज़ा का कहना था कि हमारे कॉलेज में 8000 तुलबा पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी बनाई गई तो ये कहाँ जाएंगे? यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, हुकूमत इनके बारे में क्यों नहीं सोचती? चकवाल के 2 कॉलेज खत्म और मरी के 2 कॉलेज खत्म, वोमेन कॉलेज मुल्तान खत्म, डीजी खान कॉलेज खत्म। मुझे कोई अनपढ़ बताए कि इसमें बढ़ोतरी क्या हुई? इल्म को आपने बढ़ाया है, कम किया है। हुकूमत 100 यूनिवर्सिटियां बनाए, कॉलेजेस को खत्म ना करे। खवातीन कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाया गया, 13,000 से अब 1900 बच्चियां हैं। क्या मुआशरे के लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? एक सेमेस्टर की फीस, 4 महीनों की फीस एमरसन कॉलेज की बीएस की 1100 रुपए है, जबकि आप BZU चले जाए वो फीस 30,000 रुपए है। एक मोहल्ले का स्कूल भी 1100 में 1 महीने की तालीम नहीं देता, जबकि एमरसन कॉलेज 4 महीने की तालीम 1100 रुपए में दे रहा है। असातिज़ा का मजीद कहना था कि हम किसी चीज का मुतालबा नहीं कर रहे, हम तालीम के खात्मे को रोकने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी बनने पर 4000 देने वाला बच्चा 40,000 कैसे देगा? ये हमारे कॉलेज की 8000 से ज्यादा तादाद है। ये कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये हमें नामंजूर है। इसमें असातिज़ा का भी नुकसान है, जिसमें बच्चों का भी है। यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। 40,000 45,000 ये फीस कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी की परमिशन दे के। हालांकि हमारी जो फीस है वो इस वक्त हमारी तकरीबन 6,000 7,000 पर सेमेस्टर बनती है, और जबकि यूनिवर्सिटी बनने के बाद ये बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तालिबे इल्मों ने कहा कि वो सरकारी इदारों में इस वजह से पढ़ते हैं कि वो ज्यादा फीस नहीं दे सकते। अगर कॉलेज की हैसियत खत्म हो गई तो फिर इनकी तालीम का नुकसान होगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। नेशनल इंतजामिया ने कोरोना वबा के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की गई नर्सेस को 6 माह तक सख्त ड्यूटियां लेने के बाद 3 माह की तनख्वाहों की अदायगी करके रुखसत कर दिया। नर्सेस लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट और निश्तर अस्पताल MS दफ्तर के दरमियान शटल कॉक बन गई। बिलाल नियाज़ी की रिपोर्ट। के दौरान निश्तर हॉस्पिटल में 6 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर नर्सेस की भर्ती की गई। तमाम 6 माह तक सख्त ड्यूटियां लेने के बाद 3 माह की तनख्वाह देकर रुखसत कर दिया गया। 29 नर्सेस अब परेशानी के आलम में निश्तर हॉस्पिटल MS और लाहौर सिविल सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तमाम उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा और 3 मंथ की सैलरी थी, और फिर इन्होंने कहा कि आप लोगों को 3 मंथ आगे एक्सटेंड किया गया है। फिर हम लोगों ने आगे कंटिन्यू रखी अपनी ड्यूटीज वगैरह। फिर 3 मंथ की इन्होंने हमें 6 मंथ के बाद इन्होंने हमें रिलीव कर दिया और सैलरी नहीं दी। नर्सेज ने निश्तर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि उन्होंने मुश्किल वक्त में काम किया,
कोरोना के मरीजों की देखभाल की, अपने घर वालों से दूर रही, मगर अब इंतजामिया उनको वाजिबात देने को तैयार नहीं। आप सेक्रेटरीट खुद 1-2 बार चक्कर लगाए, हमने 2 चक्कर वहाँ भी लगाए हैं, लेकिन वहाँ हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो कहते हैं आप हमारे एम्प्लॉयर ही नहीं है, हमने आपको 3 माह के लिए रखा था, उसकी सैलरी दे दी है, अब आपका एमएस जाने, एमएस खुद क्यों नहीं आते, आप लोगों को क्यों आगे कर दिया। तो अब ये है कि अब एमएस के पास भी जाते हैं, वो कहते हैं वो हायर अथॉरिटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नर्सेज ने मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर 3 माह के बकाया जात अदा किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। जिला इंतजामिया मुल्तान की जानिब से बगैर नक्शा मंजूरी इमारात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। बगैर मंजूरी की तामीरात शुरू करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान में गैर कानूनी इमारतों और नई सड़कों की तामीरात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक की जेर सदारत प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, तमाम तहसीलों के चीफ अफसरान समेत पुलिस और दीगर महकमों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कमर्शियल इमारत के कयाम से कबल छोटी और बड़ी ट्रैफिक की असेसमेंट जरूरी की जाए। मेन सड़कों और गुंजानाबाद इलाकों में मजीद कमर्शलाइजेशन की हरगिज इजाजत न दी जाए। गैर कानूनी बिल्डिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कमर्शलाइजेशन को बैन करने का सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर होगी भी तो जो भी अप्रूवल होगी उसमें पार्किंग स्पेस जो है वो हम कंपल्सरी करेंगे और उसकी स्टडी हमारी तकरीबन 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। 2-3 दिन के बाद दोबारा इस पर मीटिंग होगी, जितने भी रोड्स हैं उसकी रीक्लासिफिकेशन होगी, उसकी सेटबैक के हवाले से भी डिसाइड होगा। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक ने कब्रिस्तानों और सरकारी अर्जी पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करने का हुक्म दिया, जबकि नई सड़कों की तामीरात में आबादी को मद्देनजर रखते हुए तामीरात शुरू करने की हिदायत की। ट्रैफिक पुलिस को शहरी हदूद में दाखिल होने वाली लोड ट्रालियों को ढांपने का पाबंद बनाने के आर्डर जारी किए। जी बिल्कुल, ग्रेवयार्ड्स के हवाले से भी इंस्ट्रक्शन मैंने कम्युनिकेट की है, उसमें जहाँ जहाँ पे स्टेट लैंड है उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। चीफ सेक्रेटरी साहब की, सीएम साहब की स्पेशल डायरेक्शंस पे, और हम डेली की उनको रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। उसमें इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि जहाँ पे आबादी है वो सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में जो एग्रीकल्चर ज़मीनें हैं जहाँ पे कब्जा हुआ है या टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है या कमर्शियल एक्टिविटी है, उसको हम फोकस करें। इजलास में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कमेटी के कुल 29 केसेस जेर बहस लाए गए। 16 केसेस की मंजूरी दी गई, 6 मुस्तरद और 7 को अगले इजलासों में दोबारा पेश करने का भी फैसला किया गया। कैमरामैन मुगीश शाह के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। दाजिल केनाल की बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज हैं। काश्तकारों का ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च राजनपुर से जामपुर पहुंचकर डीजी खान के लिए रवाना हो गया। दादल केनाल को खोलने का मुतालबा किया गया। काफिले के शुरका ने सूबाई वज़ीर आबपाशी सरदार मोहसिन खान लगारी के खिलाफ नारेबाजी की। 3 माह से दादल केनाल की बंदिश के खिलाफ किसान बोर्ड राजनपुर की ज़ेर क़यादत ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च राजनपुर से जामपुर पहुंच गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जामपुर के अहदेदारों डॉक्टर फैजुल हसन गदारा समेत दीगर अहदेदारों ने मार्च का इस्तकबाल किया। जमात इस्लामी के अहदेदार भी इस मौका पर मौजूद थे। रोहित से गुफ्तगू करते हुए ज़िलाई सदर ख्वाजा मोहसिन रियाज और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट की तहसील सदर डॉक्टर फैजुल हसन गदारा ने कहा कि इलाका पचाद का ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा हो रहा है। दादिल केनाल को 3 माह से बंद कर दिया गया है। फसलों, इंसानों और जानवरों को पानी नहीं मुयस्सर। मार्च तक सब्र करने का मशवरा दिया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि दादल केनाल में फौरी पानी छोड़ा जाए ताकि इंसानों, जानवरों और फसलों को पानी मिल सके। मार्च के शुरका ने सूबाई वज़ीर आबपाशी सरदार मोहसिन खान लगारी को तनकीद का निशाना बनाया और उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुल्तान में जमात इस्लामी लेबर विंग के ज़ेर-ए-तमाम मरकजी रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज सलमान भट्ट की याद में ताज़ती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में जमात इस्लामी लेबर विंग के ज़ेर एहतमाम मरकजी रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज सलमान भट्ट की याद में ताज़ियाती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। नेशनल लेबर फाउंडेशन के सदर शमसुर रहमान सवाती ने कहा कि हाफिज सलमान भट्ट कौमी सतह के लीडर थे। जमात इस्लामी को ये एजाज हासिल है कि इनके पास हाफिज सलमान भट्ट जैसे लोग थे। अल्लाह ताला ने हाफिज सलमान भट्ट को जुर्रत दी थी कि वो हक के लिए लड़ सकें। जुर्रतमंद, दलेर, नडर, बेबाक, इल्म वाले, जुस्तजू वाले, जो काम उनके सुपुर्द होता था उसको वो इस खूबी से करते थे कि उस काम के तमाम पहलुओं को वो अच्छी तरह समझते, उस पर मुताला करते। हकीकत यह है कि
वो एक बहुत ही मुदब्बर इंसान थे। जिलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि हाफिज सुलेमान भट्ट 2 बार मिंबर कौमी असम्बली, 1 बार MPA रहे, मगर जनाजा किराए के मकान से उठा। हाफिज सुलेमान भट्ट के मिशन को आगे लेकर चलेंगे। इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग, ज़र्ब है कारी। हाफिज साहब बेइंतहा वजी थे, बहुत खूबसूरत थे, बहुत कद वाली शख्सियत थे, लेकिन उनके सीने में कुरान था। वो हाफिज कुरान थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान ही को ओढ़ना और बिछोना बनाए रखा। ताज़ीती रेफरेंस में जनरल सेक्रेटरी प्रेम यूनियन मोहम्मद अयूब, नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब आसिफ महमूद अखवानी, डॉक्टर वसीम, मंजूर पहलवान, प्रोफेसर अली असगर सलीमी, अब्दुल रहमान हैदरी, राना मोहम्मद शरीफ, मिर्जा तनवीर बेग, शाह वली राजपूत और इस अवैस हमीद समेत दीगर रहनुमा शरीक थे। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ जुनेद अनवर, रोही मुल्तान। RPU मुल्तान खुर्रम अली शाह की ज़ेर सदारत रीजनल प्रमोशन बोर्ड का इनेकाद हुआ। RPU मुल्तान ने 29 ASI और 55 हेड कांस्टेबल्स की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। RPU मुल्तान खुर्रम अली शाह की सरबराही में रीजनल प्रमोशन बोर्ड में CPO मुल्तान महबूब रशीद, DPO बिहाड़ी और DPO लोधरा ने शिरकत की। इजलास में ASI की 70 असामियों पर तरक्की के लिए 91 हेड कांस्टेबल्स के नाम ज़ेर गौर आए, जबकि सब इंस्पेक्टर की 30 असामियों पर 80 ASIs के नामों पर गौर किया गया। RPU मुल्तान ने 29 ASI और 55 हेड कांस्टेबल्स की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्की पाने वाले मुलाजमीन का ताल्लुक मुल्तान, खानेवाल, लोधरा और बिहाड़ी अजलास से है। RPU मुल्तान ने कहा कि तरक्की हर सरकारी मुलाजिम का बुनियादी हक है। RPO सरगोदा अशफाक खान की सरबराही में महकमाना प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ। 22 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। RPO सरगोदा अशफाक खान की ज़ेर सदारत महकमाना प्रमोशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 22 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। RPO सरगोदा अशफाक खान ने कहा कि तरक्की पाने वाले पुलिस एहलकार फराइज ईमानदारी, नेकनियती और मेहनत से सरअंजाम दें। किसी दबाव को खातिर में लाए बगैर शहरियों को मेरिट पर इंसाफ फराहम किया जाए। RPO सरगोदा ने नए प्रमोट होने वाले तमाम पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद दी और कहा कि वो अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोए कार लाकर आम शहरियों की दाद रसी का बायस बने। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा जुल्फिकार अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब मोहम्मद नवीद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फेरोज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर ताहिर रहमान खान और असिस्टेंट डायरेक्टर RPO ऑफिस ने शिरकत की। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार ओहदेदारान के एहतसाब का अमल शुरू कर दिया गया। नए बार ओहदेदारान ने साबिका ओहदेदारों के इस्तेमाल होने वाले सालाना फंड्स का बैनर्स अवेजा कर दिया। सदर बार यूसुफ अकबर नकवी कहते हैं, बार सालाना फंड्स में मुबैना खुर्द बुर्द पर जनरल बॉडी का इजलास बुलाकर फैसला किया जाएगा। माहिर इमरान की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट बार के नए ओहदेदारान ने साबका ओहदेदारान के इस्तेमाल होने वाले सालाना फंड्स के कचहरी में बैनर्स अवेजा कर दिए। सदर बार यूसुफ अकबर ने कहा कि फंड्स में मुबैना खुर्द बुर्द पर जनरल बॉडी का इजलास बुलाया जाएगा। पहला स्टार्ट जैसे मैंने ठेका दिया साइकिल स्टैंड का, सबके सामने ओपन नीलामी हुई, शफाफियत का सारे अंसर उसमें मौजूद थे। नीचे बार हाल में हुआ, सारे सीनियर्स बैठे थे, सब पार्टीज वहीं आई, कोई बिड नहीं की, ओपन बोली थी, सबने सुनी और जो टॉप पे था उसको ही ठेका हमने अलॉट कर दिया। इसी हवाले से जो पिछली एग्जेक्टिव के थे मसाइल वो भी हमने बताए और इंशाल्लाह हम जाते हुए अपने बार का खुद यहाँ पेनाफ्लेक्स अवेजा करके जाएंगे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार यूसुफ अकबर कुंडी ने कहा कि गुज़िश्ता साल कचहरी स्टैंड्स का ठेका 82,80,000 में दिया गया। इस साल ठेका 2,10,00,000 रुपए हुआ। बार रूम के बरामदे में मार्बल फर्श पर 4,46,000 रुपए, टाइल लगाने पर 2,58,000 रुपए और पेंट करवाने के लिए 70,000 रुपए जायद लिखवाए गए। बरामदे में 8 बल्ब और वायरिंग के 2,400 रुपए बने थे, जो 85,000 लिखे गए। और मेरी कोशिश है कि एक ऐसी खूबसूरत टीम बना के जाएं, एक ऐसी कमेटी बना के जाएं जो आने वाले सबका और सबका एहतसाब करे। जब तक हमारा खुद एहतसाबी का अमल शुरू नहीं होगा हम कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते।
हम दलदल में फंसे रहेंगे और वो हमारी नाकामी होगी। इन्होंने कहा कि दरवाजे पॉलिश करने के अखराजात 8,000 की बजाय 85,000 रुपए लिखे गए। लेडीज बार रूम की सीढ़ियों की मद में 3,24,000 रुपए, कचहरी कैंटीन की मुरम्मत की मद में 2,56,000 रुपए जायद लिखे गए। बार में लाइट्स और वायरिंग की मद में 16,69,000, सोफे रखवाने की मद में 3,24,000 रुपए जायद लिखवाए गए। सालाना फंक्शन पर 41 लाख रुपए के अखराजात जाहिर किए गए। कैमरामैन करार हैदर के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। दुनिया भर की तरह जनूबी पंजाब में भी पैरामेडिक्स का आलमी दिन मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में पैरामेडिक्स की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जनूबी पंजाब भर की तरह मुल्तान के अस्पतालों में पैरामेडिक्स का आलमी दिन मनाया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में पैरामेडिक्स के आलमी दिन के मौका पर केक काटा गया। तमाम अपने पैरामेडिक्स को सलाम पेश करता हूँ। यकीनन हर दुनिया भर में तमाम जो है उनकी कुदरती आफात में सैलाब हो, जलजला हो, ये कोरोना की वबा के दौरान हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने हमेशा बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत सर अंजाम दी है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से पैरामेडिक्स को आज के दिन के मौका पर खिराजी तहसीन पेश करता हूँ। मैं आज के दिन हुकूमत पंजाब की तरफ से, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से, कल मेरी उनसे मुलाकात भी है, मैं उनकी तरफ से तमाम दुनिया के, पाकिस्तान के और बिलखुसूस यहाँ शहबाज शरीफ हॉस्पिटल लिया जैसल में डॉक्टर नईम क्लास्ट्रा फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम किताब मेला जारी। सीनियर सहाफ़ी राउफ क्लास्ट्रा के बड़े भाई डॉक्टर नईम मरहूम की याद में किताब मेला सजाया गया। मजीद देखिए जाहिर सरफराज की रिपोर्ट में। मुत्तबीनी के फरोग के लिए लिया में डॉक्टर नईम क्लास्ट्रा फाउंडेशन की कोशिशें जारी हैं। सीनियर सहाफ़ी राउफ क्लास्ट्रा के बड़े भाई डॉक्टर नईम मरहूम की याद में किताब मेला सजाया गया। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया और मामून खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत अली गिलानी ने किताब मेले का इफ्तिताह किया। मेले में दीनी, सियासी, लिटरेचर, अदब समेत नामवर लिखारियों की किताबें डिस्काउंट रेट पर मौजूद हैं। मेले में नामवर सहाफ़ी राउफ क्लास्ट्रा की तसनीफात भी शामिल की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर असफर ज़िया का कहना था कि किताब मेले के इनेकाद से नौजवान नस्ल में कुतुबीनी को फरोग मिलेगा। कुतुबीनी का शौक हमारे माशरे में कम होता जा रहा है और मैं समझता हूँ किसी कौम की तरक्की के लिए कुतुबीनी इंतहाई जरूरी है। तो ये बड़े डिस्काउंटेड रेट्स पर इन्होंने ये देहाती इलाके में आकर लिया जैसे पसमाना जिले में एक जो मेला लगाया, किताब मेला, ये बहुत खुश आइंदा और मैं समझता हूँ हमारी नई नस्ल के लिए, बच्चों के लिए ये इस शौक को परवान चढ़ने में बड़ी मददगार साबित हो। मामून खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत अली गिलानी का कहना था कि किताब मेले तरबियत और मुस्तकबिल को संवारने में किरदार अदा करते हैं। इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है लोगों का, मुतालिया कर सकें और अपने नॉलेज को बढ़ा सकें, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँ। असिस्टेंट कमिश्नर लिया न्याज अहमद ने किताब मेले की तारीफ की और कुतुबीनी के फरोग की कोशिशों को सराहा। मैं समझता हूँ ये किताब मेला जो है बड़ा ही एक खुशाइंद कदम है और इसमें मैं डॉक्टर मंसूर क्लास्ट्रा साहब को खराज तहसीन। एक हफ्ते के लिए सजाए गए किताब मेले में हाथ से बनी चंगेरें, छाबे और दीगर अशिया भी रखी गई हैं, जो शहरियों के लिए दिलचस्पी का बायस बन रही हैं। किताब मेले के इनेकाद से नौजवान नस्ल में जहां कुतुबीनी को फरोग मिलेगा, वहीं मस्बत सरगर्मियों के अंदर भी इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, लिया। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।